Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel English for All Classes. How are you friends? I hope all of you are very well and all of you are enjoying lockdowns and these days we are discussing everything. Students are learning all the subject basically online. So today in this video we are going to discuss about the second stage, and in previous video we have already discussed something about the second stage, and this second stage is known as word. तो हमने वर्ड्स के बारे में आज के इस वीडियो में वर्ड के बारे में हमने जाना था कि इन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्ड, एक वर्ड का, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, एवरीबॉडी नो द नॉलेज इज हिडन इन वर्ड्स. We must have the vocabulary, we must have the stock of words to speak and read, write and speak. We must have the vocabulary and words are important. As much as you have the vocabulary, you will be able to speak and write effective English. So 2 points we have already discussed, and now today in this video I am going to explain about the identification and meaning of word in a sentence according to position. And next point, fourth point, we will discuss the word formation. शब्दों का कैसे बना होता है word formation, that means relation between noun, adjective, verb and adverb. I have already told, we have already discussed that in all the parts of speech 4 are limited. That means pronoun, that is the preposition, conjunction and interjection. All the four parts of speech are limited, and the four, that means noun, adjective, verb and adverb, it's limited. मतलब पूरी जो इंग्लिश का डिक्शनरी है, पूरी जो अंग्रेजी में जितने भी शब्द बोलते हैं वो मोस्टली जो लाखों में हो सकता है, that is maybe noun, pronoun, verb and adverb. So in this video we will discuss about the two most point, that means identification and meaning of word in a sentence, and next verb formation, and the third point, the different topics related to vocabulary. vocabulary building करने के लिए क्या क्या different topics हो सकता है, how can improve our vocabulary. So 3 points we will discuss in this video today. So now we are going to start, and as you are seeing on the screen, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, this is the third point, that means identification and meaning of word in a sentence according to position. मतलब जब आप इंग्लिश का एक शब्द बोलते हो तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली वी कैन आइडेंटिफाई, लाइक सपोज यू से चेयर, टेबल, अर्थ. तो जब आप मून, आप एक मून बोलते हो, दैट मीन्स मून इज अ प्लैनेट, एवरीबॉडी नो. अगर अकॉर्डिंग टू अगर पूछा जाए कि मून क्या, व्हाट इज द मून अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल नेम, अगर तो मून दैट मीन्स कि आपको पता है कि दुनिया द नेमिंग वर्ड, मून एक नाम है, किसी प्लैनेट का नाम है. सो मून इज अ नाउन. तो मून क्या होगा, एक नाउन है. दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड सो मेनी पीपल हु आर एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड इन ए सेंटेंस. बिना सेंटेंस में वर्ड को यूज किए हुए भी आप बहुत सारे बता सकते हो. बट a word may be sometimes noun, may be adjective, may be verb, may be pronoun. So according to the sentence, according to the position of word in a sentence, the grammatical name becomes change. जो grammatical जो नाम होता है वो change हो जाता है. ऐसे आपने बोला जैसे पेन, पेन मीन्स कलम, तो what is the pen? The pen is a noun, everybody know. अगर आपने बोलता he is a what, तो ही क्या है, तो ही इज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन यू ऑलरेडी नो कि नाउन के स्थान पे जो आप रख रहे हैं, दैट मीन्स ही इज अ प्रोनाउन. सी इज अ गर्ल, तो अब सी एक प्रोनाउन होता है. दैट मीन्स कुछ वर्ड्स को आप तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, बट कभी कभी कोई भी शब्द आप बोलते हो तो वो इट मे बी नाउन, इट मे बी प्रोनाउन, इट मे बी वर्ब. तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ड,
तो देयर आर लॉट्स ऑफ रूल, ग्रामेटिकल रूल। एज यू नो, देखो हेयर यू आर लुकिंग टू वर्ड्स, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल दैट मीन्स हम लोग जानते हैं इट्स हिंदी मीनिंग, दैट मीन्स सभी। तो ऑल, अब व्हाट इज ऑल? अगर आपको पूछा जाए कि ऑल यहाँ पे क्या है, द सेकंड वन इज क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना किसी चीज़ को, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लोज द डोर, दैट मीन्स दरवाजा बंद करो। तो अगर क्लोज का जो मेन जो हिंदी मीनिंग होता है दैट मीन्स बंद करना। बट अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल नेम ऑफ क्लोज, व्हाट इज द ग्रामेटिकल नेम ऑफ नाउन, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो विदाउट यूजिंग दिस वर्ड इन ए सेंटेंस we are not able to identify, and we must have the grammatical knowledge. यहाँ पे we must have the grammatical knowledge. Without the grammatical knowledge you will be not able to identify. That means जैसा कि आप जानते हो subject, verb and agreement एक टॉपिक होता है। देयर इज अ टॉपिक इन ग्रामर एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज नोन एज सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। क्या रिलेशन होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो यहाँ पे देयर इज अ वीडियो, एक स्पेशल वीडियो है जो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के और ग्रामर का एक अलग टॉपिक है। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग कम्प्लीटली अबाउट द ग्रामर हियर। यहाँ ग्रामर का पूरी चीज़ें हम लोग बात नहीं करें, बट we are going to explain, we are going to identify some words. कुछ एग्जाम्पल्स, मैं 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखा है, डेट मीन्स ऑल क्या है, क्लोज क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज सेंटेंसेज। आप इन सेंटेंसेज को देखें, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो as far as translation is concerned, everybody know there is a common structure to translate any sentences. That means subject. First of all we use subject, then we use verb, then we use object. That means कि subject, verb and object. That means there is a relation between. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ट्रांसलेशन की हम लोग बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है उसको फाइंड करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी यूज verb, and after that we use object. The subject, verb, object is a common structure of any sentences. But here look at these sentences. All, first sentence is all is well that ends well, मतलब अंत भला तो सब भला, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ऑल, सेकंड सेंटेंस इज ऑल मेन आर मोर्टल, मतलब मनुष्य जो है, सभी मनुष्य जो है वो क्या है, मैन जो है, आदमी है, वो मॉर्टल है, दैट मीन्स मरणशील है। आदमी क्या है, सभी मनुष्य मरणशील है। दे आर नाउ ऑल राइट, वे लोग अब अच्छे हैं, वे लोग सभी अब अच्छे हैं। ऑल वेयर इन फेवर ऑफ नेशन, मतलब सभी जो लोग थे वो नेशन, मतलब नेशन के फेवर में है। तो अब ये 4 सेंटेंस आप देख रहे हो। इन फर्स्ट सेंटेंस ऑल इज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि ऑल यहाँ पे बिगनिंग में है, सेकंड में भी बिगनिंग में दिख रहा है, एंड द थर्ड वन में यहाँ पे इन द बिटवीन है, बिटवीन में बीच में आ गया ऑल जो है, फोर्थ में आपको दिख रहा ऑल है। तो अब कैसे, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? तो देयर मस्ट हैव द ग्रामेटिकल नॉलेज। तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको कॉमन दिखा रहा हूँ। जैसे आप जानते हो कि अब यहाँ पे ऑल है, अब नहीं पता है कि व्हाट इज ऑल। तो यहाँ पे देखो सेकंड वर्ड को देखो, सेकंड वर्ड जो आपको फाइंड आउट हो रहा है दैट मीन्स इज, और एवरीबॉडी नो इज अ वर्ब, इज अ एक्सिलरी वर्ब, इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इज एक एक्सिलरी वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब के पहले जो भी चीज़ें यूज करते हैं दैट इज वर्ब के पहले होता है वो दैट इज सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के फॉर्म में एज ए सब्जेक्ट वी यूज बेसिकली नाउन आइदर प्रोनाउन। तो नाउन एंड प्रोनाउन दैट मीन्स यहाँ पे ऑल जो है एक नाउन के रूप में एक सब्जेक्ट का फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे ऑल क्या हो गया, एक नाउन में। तो इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस ऑल इज अ नाउन, यहाँ पे नाउन के रूप में ऑल मेन आर मोर्टल। अब यहाँ पे ऑल मेन, मेन दैट मीन्स मेन इज अ नाउन, सारे मनुष्य के बारे में बात हो रहा है तो मेन इज अ नाउन, और नाउन के पहले अगर कोई भी चीज आता है तो दैट इज द एडजेक्टिव, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ऑल जो हो गया वो क्या बन गया, एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया। दे आर नाउ ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर बोलते हैं दे आर नाउ राइट, तो राइट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब वो लोग अच्छे हैं, और एडजेक्टिव की भी कोई और विशेषता बताता है दैट इज द एडवर्ब। तो हियर दिस राइट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले जो और उसकी विशेषता को इंडिकेट कर रहा है दिस इज एडवर्ब। तो यहाँ पे ऑल जो हो गया वो एक एडवर्ब के फॉर्म में हो गया। इन दिस सेंटेंस ऑल इज एडजेक्टिव, इन दिस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस ऑल इज अ नाउन। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल
you will be able to identify. So this is an example. We are discussing about the word, the second stage, but here I am telling about the some examples. कुछ examples दिखाओ I am giving you, and there is a special video, grammatical video. When we will start the grammatical topic, you will be able to complete identification. You will learn the complete identification of word, grammatical name. But here I am giving you an introduction. Now next one, तो that means कि all may, all यहाँ पे जो all शब्द है, the word all may be noun, may be adjective, may be adverb, may be pronoun. तो यहाँ पे all मतलब जो all शब्द है वो according to position in a sentence, its meaning is going to change. उसका meaning क्या हो रहा है, change हो रहा है. The next one is close. Close का मतलब हम लोग जानते हैं बंद करना. अब यहाँ पे देखो there are 4 sentences based on close. Close पे 4 sentences है. The meeting came to close at 5 p. जो मीटिंग है वो 5 बजे बंद हो गया. That means यहाँ पे close जो है वो came to close. तो close का मतलब लास्ट में है. This is time. तो यहाँ पे close एक noun के फॉर्म में है. तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो, यू आर लुकिंग दैट कि दिस इज अ नाउन. सेकंड है दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. तो वे लोग बहुत ही क्लोज, नज़दीकी दोस्त हैं. तो फ्रेंड इज अ नाउन. यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया, एक नाउन हो गया. जो लास्ट में है दैट इज फ्रेंड्स क्या, दोस्तों के. दिस इज अ कॉमन नाउन. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इज अ नाउन, एंड नाउन की जो विशेषता बता रहा है क्लोज फ्रेंड, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. दैट मीन्स यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. दैट मीन्स यू मस्ट हैव knowledge about the identification of noun, pronoun, verb, and all these 8 kinds of 4 parts of 8 group of words. तो अगर आपके पास 8 ग्रुप ऑफ नाउन को पहचानना, एडजेक्टिव को पहचानने, ये पहले आना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, और वो सभी रूल्स को जब आप जानेंगे, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड. बट हियर जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड में देखो द स्कूल विल क्लोज. तो यहाँ पे दिस द स्कूल इज ऑल्सो अ नाउन एंड दिस इज यूजिंग एज अ सब्जेक्ट. यहाँ पे जो स्कूल शब्द है वो एक सब्जेक्ट का रूप में लिया हुआ है, और सब्जेक्ट के फॉर्म में आइदर नाउन होता है या प्रोनाउन. तो स्कूल इज अ प्लेस, स्कूल इज अ नेम ऑफ ए प्लेस. स्कूल एक स्थान का नाम हो गया, सो इट इज नाउन. और नाउन के बाद जो यहाँ पे विल है, विल इज ऑल्सो अगेन अ वर्ब, इट्स ऑक्सिलरी वर्ब. तो विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है. यहाँ पे दिस इज स्कूल एक सब्जेक्ट है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो आता है एंड दिस इज यहाँ पे मेन वर्ब का बन गया. दैट मीन्स यहाँ पे क्लोज जो हो गया वो एक क्या बन गया, वर्ब बन गया. दैट इज द मेन वर्ब के रूप में आ गया. तो इसमें आप देखो नाउन बना हुआ, इसमें क्लोज क्या है, इट इज एडजेक्टिव. इसमें क्या बन गया, वर्ब बन गया. एंड नेक्स्ट बोथ वॉक क्लोज टू ईच अदर. तो यहाँ पे क्लोज टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, तो उसकी भी विशेषता नज़दीक में चल रहा है. मतलब एक दोनों जो वॉक कर रहे हैं, वॉक किया, वो ईच अदर अगर यही सेंटेंस रहता बोथ वॉक टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चले. लेकिन क्लोज है, नज़दीक, मतलब एडजेक्टिव की भी और ज़्यादा नज़दीकी विशेषता है. यहाँ पे दूर नज़दीक होने की बात हो रहा है. दैट मीन्स कि ईच अदर जो हो गया यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव के फॉर्म में है, और एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बता रहा है दैट मीन्स एडवर्ब वाला. तो यहाँ पे इन दिस वीडियो यू आर लुकिंग दैट कि देयर आर 2 वर्ड, दैट मीन्स ऑल हैज सब्जेक्ट है, और इट मे बी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. तो इन आप नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. इसके बारे में आप कुछ समझने की कोशिश करें. आई विल गिव यू सम वर्ड्स एंड एटलीस्ट 50 वर्ड्स के अंदर आप प्रैक्टिस करें, 100 वर्ड्स के प्रैक्टिस करें. आप उस पर सेंटेंस में बना के आई विल प्रोवाइड यू सेंटेंसेज, एंड आफ्टर दैट यू विल बी. तो दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस. ये एक दिन की चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में 2 वर्ड्स समझ जाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा. इट्स अ टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें आपको समय लगता है, और धीरे धीरे slowly you will get. First of all you have to know about the noun and about the you have to know about the noun, verb, adverb, parts of speech के बारे में आपको पहले आना चाहिए. And there are some subject, verb, agreement, and there are also so many rules of grammar you must know. तो आपको वो पहले सारी चीज़ों जानना होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. और धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड्स को आप देखेंगे, और स्लोली यू विल गेट नॉलेज. दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि इन वन डे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स. इट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब. सो स्लोली यू विल गेट नॉलेज एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स. आप धीरे धीरे इसको पहचानना सीखेंगे. दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस. सो फ्रेंड्स,
here in this video मैंने आपको ये बताया कि these are the two words that is all and close. तो how to identify, आपको examples मैंने बना के देखा। इस तरह से मैं बहुत सारे words आपको दूंगा जिस पर कि आपको sentence लिखा होगा। ये तो example मैंने दिया आपको। next आपको ऐसे words 5 words 10 words दूंगा जिसके sentence बना होगा and you have to find out the meaning, grammatical name, और उसका आपको खुद से grammatical name बनाना हो। तो डेली आप 2 4 5 वर्ड्स को ऐसे आप डेली यूज करोगे तो आफ्टर सम टाइम्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो बहुत सारे वर्ड्स को आप पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे आइडेंटिफाई होता है, कैसे ग्रामेटिकल नेम होता है ऑफ वर्ड्स, नाउन है, प्रोनाउन है, और 4 इसमें लिमिटेड है और 4 है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज द वर्ड फॉर्मेशन। That means we are going to discuss about the relation between noun, verb, adjective and adverb. कभी एक शब्द noun बनता है, उसी से verb बन जाता है, उसी से adjective बनता है, उसी से adverb बन। तो we are going to discuss the word formation. That means the relation between noun, verb, adjective और adverb. ये चारों में, इससे आप you will be able to improve your vocabulary. You will be able to create the vocabulary. You will be able to create the word meaning. आप बहुत सारे शब्द बनाना सीख जाएंगे, खुद से आप शब्दों का मीनिंग समझ जाओगे। आप वर्ड फॉर्मेशन बहुत सारे शब्द आप खुद बना सकते हो। एंड यू विल बी ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, कैसे एक नाउन को वर्ब बनाते हैं, कैसे एक नाउन को एडजेक्टिव बनाते हैं, कैसे एक एडवर्ब बन जाता है। तो वो सारे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट the relation, and it will improve your vocabulary. And you will be able to translate, it will also improve your translation. आपको ट्रांसलेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ नंबर, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, वर्ड फॉर्मेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So and that means we can say we are going to discuss about the relation between noun, verb, adjective and adverb. आपको पहले भी I have already told you कि पूरी डिक्शनरी में 4 ही ऐसे शब्द हैं जो भरा हुआ है, पूरी डिक्शनरी जो भरा हुआ है इन 4 शब्दों से ही। बाकी जो आपको मैंने बताया था प्रोनाउन, preposition, conjunction and interjection, 4th are fixed, 4th are limited, but the noun, verb, adjective, adverb, these are unlimited. ये अनलिमिटेड है, लाखों में हो सकता है। तो आज हम इसके रिलेशंस के बारे में जानें। तो नाउ स्टार्ट। हियर यू आर लुकिंग दैट रचना। जैसे हम लोग हिंदी से पहले समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदी। हम लोग हिंदी शब्द को समझते हैं। सपोज करो आपको एक रचना शब्द बोला गया, तो रचना का 4 फॉर्म देखो आप बना के मैंने यहाँ दिखाया। फर्स्ट आपने बोला रचना। डोंट डिस्कस अबाउट द इंग्लिश के बारे में मत सोचो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द हिंदी। जैसे मैंने लिखा रचना, तो रचना लिखा, रचना का ही लिखा, रचना करना, रचनात्मक, रचनात्मकता से। तो रचना, रचना करना, रचनात्मकता, रचनात्मक और रचनात्मकता पूर्वक या रचनात्मकता से। तो 4 वर्ड्स देखो यहाँ पे रचना से ही बन गया। रचना, रचना करना, रचनात्मक और रचनात्मकता से या पूर्वक। अब इस पे सेंटेंस देखो हिंदी का। जैसे यह मेरी रचना है, आपने हिंदी में बनाया। मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है, यह तस्वीर बहुत रचनात्मक है, अपना काम रचनात्मक पूर्वक करो। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हिंदी का लिखा मैंने, और यही चारों पर मैंने 4 सेंटेंस आपको दिया है कि यह मेरी रचना है, मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है, यह तस्वीर बहुत रचनात्मक है, अपना काम रचनात्मक पूर्वक करो या करें। एंड नाउ ट्रांसलेट ऑल दीज 4 हिंदी सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस चारों हिंदी जो सेंटेंस मैंने 4 वर्ड्स पे दिया कि यह मेरी रचना है, मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है, यह तस्वीर बहुत रचनात्मक है, अपना काम रचनात्मकता पूर्वक करें। तो नाउ ट्रांसलेट। अब आपको इफ यू हैव द आइडिया अबाउट द ट्रांसलेशन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे यह मेरी रचना था, दिस, जैसे कोई चीज रचना मीन्स आपने समथिंग यू हैव ऑलरेडी क्रिएट। आप कुछ ऐसी चीजें हैं, ड्राइंग है या एनिमल का पिक्चर है, आपने जो चीज बना रखा है, कुछ ऐसा वर्क है जो आपने ऑलरेडी फिनिश्ड कर दिया है, जिसको आपने बना रखा है और उसके बारे में आप बात करो। तो यह मेरी रचना है का मतलब हो गया कि कुछ चीजें ऐसा है जो ऑलरेडी बन करके आपके सामने रखा हुआ है और आप उसके बारे में किसी को बता रहे हैं। यू आर टेलिंग समवन दैट यह मेरी रचना है, आप उसको उस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो जो चीज ऑलरेडी बना हुआ है, जो बन के तैयार हो चुका है, दैट मीन्स उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई वस्तु है जो आपके सामने आपने कुछ बनाया है, कुछ ड्राइंग बनाया है, किसी भी तरह का कुछ
प्रोजेक्ट बनाया और आप उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि कोई चीज़ आपने ड्राइंग बना रखा है, वो ऑलरेडी कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है जिसका नाम है, जिसका ड्राइंग नाम है, एनिमल नाम है, कैट नाम है, फ्लावर नाम है, जो आपने बनाया और आप उसके बारे में बता रहे हो, तो उसका कुछ नाम है। डेट मीन्स फ्लावर है, एनिमल है, टाइगर है, लायन है, जो आपने बनाया तो नाम है। और जो नाम होता है वो आपको पता है कि नाउन होता है। डेट मीन्स अगर इसको हम बनाए तो यह मेरी रचना है, दिस इज माई क्रिएशन, यह मेरी रचना है। तो ये आपने बना रखा है, तो यहाँ पे क्या किया कि जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में आपने क्या यूज किया, तो दिस इज माई क्रिएशन। मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है। अब इस सेंटेंस में देखो, पहला सेंटेंस में आपको पता चला इन फर्स्ट सेंटेंस कि यह मेरी रचना है। डेट मीन्स कि कोई चीज़ ऑलरेडी आपने बना रखा है, बन करके तैयार है। बट सेकंड सेंटेंस में मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है। डेट मीन्स जो चीज़ अभी बनी नहीं है उसको आप बनाना चाहते हो। एक अच्छी तस्वीर, एक अच्छे ड्राइंग, एक अच्छी कोई भी चीज़ बना, मतलब इस सेंटेंस से ये इंडिकेट हो रहा है, ये एक्सप्रेस हो रहा है कि कोई भी चीज़ अभी बना हुआ नहीं है, उसको आप बनाने जा रहे हो। डेट मीन्स कि क्रिएट नहीं है, ये आपको बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको ट्रांसलेट अगर किया तो देखो यहाँ ट्रांसलेट किया, आई हैव टू क्रिएट अ गुड पिक्चर, मतलब मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है। आई हैव टू क्रिएट ए गुड पिक्चर, आई हैव टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, आई हैव टू क्रिएट ए नाइस पिक्चर। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने देखो आप इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में यह मेरी रचना है, इसमें आपको जो जिस चीज़ के बारे में आप बात करें वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे क्रिएशन यूज किया। मुझे एक अच्छी तस्वीर की रचना करनी है, अभी ये चीज़ बनी हुई नहीं है, बनाना चाह रहे हो, दैट मीन्स आई हैव टू क्रिएट, तो यहाँ क्रिएशन हो गया, यहाँ पे क्रिएट करना है। नेक्स्ट है, यह तस्वीर बहुत रचनात्मक है। आपने कुछ जो ड्राइंग बनाया उसकी विशेषता को किसी को बताने की कोशिश कर रहे हो। पहली चीज में जो वस्तु बना हुआ था उसको, उसका क्या है वो उसके बारे में आपने बताया। दूसरे में आप उसको बनाने जा रहे हो, बना हुआ नहीं है। और तीसरे सेंटेंस में यह तस्वीर बहुत रचनात्मक है, जो आपने बना रहा है उसकी विशेषता को बता रहे हो। तो दिस पिक्चर इज वेरी क्रिएटिव, यह तस्वीर क्या है, बहुत ही रचनात्मक है। अपना काम रचनात्मक पूर्वक करो। डैट मीन्स आप कोई वर्क करने जा रहे हो, एंड डू योर वर्क क्रिएटिवली, मतलब अपना काम रचनात्मकता पूर्वक करो। डू योर वर्क क्रिएटिवली, मतलब अपना काम रचनात्मकता पूर्वक करो। तो ये चार सेंटेंस देखो मैंने बताया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी 100%। यू मस्ट वॉच यू, बट यू नीड प्रैक्टिस, कीप पेशेंस एंड ट्राई टू डू प्रैक्टिस। ऐसे हिंदी बहुत सारे वर्ड्स सोचो और उसको बनाने। अब रचना, रचना करना, रचनात्मक, रचनात्मकता से, तो रचना मतलब हो गया जो ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरे सेंटेंस से बोध हो रहा है कि आप उस चीज़ को बनाने जा रहे हैं। यह तस्वीर बहुत रचना है, उसकी आप विशेषताओं को बना रहे हो। और किसी काम को करो तो वो ध्यानपूर्वक आप करो, तो डू योर वर्क क्रिएटिवली। तो ये चार सेंटेंस मैंने बनाया। अब नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, तो डैट मीन्स रचना का क्या हो गया, क्रिएशन हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो रचना करना, डैट मीन्स क्रिएट हो गया। यहाँ रचनात्मक है, डैट मीन्स क्रिएटिव हो गया। एंड यहाँ पे रचनात्मकता पूर्वक, डैट मीन्स क्रिएटिविटी। एंड नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ऐसे तो आप डायरेक्टली क्रिएशन, क्रिएट, क्रिएटिव, क्रिएटिवली बोलेगा तो हो सकता है यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। एंड नाउ यू कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पोजिशन ऑफ द वर्ड। अब जैसे दिस इज माई क्रिएशन, यह मेरी रचना है, तो कोई चीज बना हुआ है और लास्ट में है यह माई है, तो माई जो है एक दिस इज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है। दैट मीन्स आप सेंटेंस को देख करके, अगर आप केस वगैरह पढ़ा है, अपने रूल्स जानते हो, तो माई एक एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो चीजें होता है दैट इज द नाउन। तो यहाँ पे इन फर्स्ट सेंटेंस में क्रिएशन क्या बन गया, एक नाउन है, तो क्रिएशन यहाँ पे नाउन बना हुआ है। दूसरे सेंटेंस आई हैव टू क्रिएट, तो यहाँ पे आई इज अ सब्जेक्ट, दिस इज प्रोनाउन, ग्रामेटिकल नेम इसका प्रोनाउन है। हैव टू इज अ हेल्पिंग वर्ब, हैव टू एक रूल्स है जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब। और इसका यहाँ पे क्रिएट, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, एक मेन वर्ब है, दैट मीन्स क्रिएट यहाँ पे वर्ब का फॉर्म बन गया। एंड दिस पिक्चर इज वेरी क्रिएटिव। अब यहाँ पे दिस पिक्चर इज वेरी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव बता रहे हो, मतलब उस पिक्चर जो बना हुआ है उसकी विशेषता को बता रहे हो। दैट मीन्स क्रिएटिव यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे देखो डू योर वर्क क्रिएटिवली, तो वर्क, डू योर वर्क मतलब अपना काम करो, लेकिन कैसा काम करो, तो वर्क यहाँ पे आपको वर्क हो गया नाउन, और उसके बाद क्रिएटिवली, दैट मीन्स
अब ये एक तरह से डू योर वर्क, अपना काम करो। तो एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, मतलब कि ध्यानपूर्वक करो, दैट मीन्स क्रिएटिवली। तो आपने देखा कि रचना, रचना करना, रचनात्मक, और ये चारों पे पहले हिंदी सेंटेंस बनाना है, देन नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन भी, योर ट्रांसलेशन विल इम्प्रूव, एंड नाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। अब जैसे मैं देखो कुछ और सेंटेंस देगा, यह मेरी रचना है, अब इसके और सेंटेंसेज यू कैन मेक ट्रांसलेट। जैसे क्या यह आपकी रचना, इज दिस योर क्रिएशन, नो दिस इज नॉट माई क्रिएशन। यह आपकी क्रिएशन कैसे, हाउ दिस इज योर क्रिएशन। तो आप इसमें बहुत सारे सेंटेंसेज और भी बना सकते हो। तो ये फर्स्ट आपने देखा एक वर्ड फॉर्मेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक शब्द से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो, और यू विल बी एबल टू, इससे आप आइडेंटिफाई भी करने में होगा, और पूरी रिलेशन, एंड दिस विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ये आपके स्टॉक ऑफ वर्ड्स को, वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स हियर यू आर लुकिंग सफलता। Here you are looking, you are seeing that सफलता। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन का, सफलता, सफल होना, सफल, सफलता पूर्वक। अब एक वर्ड को मैंने 4 हिंदी वर्ड्स फॉर्म में बनाया, सफलता, सफल होना, और सफल, असफलता पूर्वक, या सफलता से। अब इस पे आपको देखो पहले हिंदी सेंटेंस देखो, यह मेरी बड़ी सफलता है, वह सफल होना चाहता है, वह सफल है, अपना काम सफलतापूर्वक करो। डैट मीन्स आप देखो ये 4 सेंटेंस, यह मेरी बड़ी सफलता है, डैट मीन्स कि आप किसी चीज़ में आप सक्सेस हो चुके हैं, ऑलरेडी आपको सफलता मिल चुकी है, और उसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे काम ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, जो आप जॉब या किसी भी तरह का कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त कर लिया है। अब वह सफल होना चाहता है, डैट मीन्स वो अभी सफल नहीं हुआ है, उसे प्राप्त नहीं हुआ है, और वह सफल होना चाहता है। वह सफल है, सफल है डैट मीन्स कि वो किसी चीज़ को प्राप्त कर चुका है और वो वर्क कर रहा है, अपना काम सफलतापूर्वक करो। एंड नाउ ट्रांसलेट ऑल दिस, यह मेरी सफलता है, तो कोई चीज़ बनाओ, दिस इज माई बिग सक्सेस, यह मेरी बड़ी सफलता, दिस इज माई बिग सक्सेस। वह सफल होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सक्सीड। अब यहाँ पे सक्सेस के जगह पे क्या यूज करना है, सक्सीड है। वह सफल है, ही इज सक्सेसफुल, अपना काम ध्यानपूर्वक करो, डू योर वर्क सक्सेसफुली। तो देखो एक ही शब्द का, अब नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे सफलता, कोई चीज़ बना हुआ है तो लास्ट में यूज हुआ, ये एडजेक्टिव बता रहा है, माई बिग सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस क्या हो गया, एक नाउन क्या, दिस इज पॉसेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, और उसके बाद कोई नाउन है, तो यहाँ पे सक्सेस इज अ नाउन। यहाँ पे ही है, दैट इज द सब्जेक्ट, दिस इज अ प्रोनाउन, वांट्स एक हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द मेन वर्ब। यहाँ पे टू सक्सीड, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, दैट इज द मेन वर्ब। ही इज सक्सेसफुल, मतलब उसकी विशेषता को बता रहा है, सक्सेसफुल पर्सन है, ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो पर्सन अगर नाउन है तो उसके पहले अगर सक्सेसफुल लगा तो दैट मीन्स द एडजेक्टिव, तो सक्सेसफुल इज एडजेक्टिव। और डू योर वर्क सक्सेसफुली, तो दिस इज एडवर्ब। तो दैट मीन्स कि एक ही शब्द को बहुत सारे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन अगर आप जानते हो, अच्छे से समझ लेंगे, एंड आई विल गिव, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और मैं बोलता हूँ। जैसे आप बोलते हो हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पीली, खुशी से। तो इस तरह से आप बहुत सारा शब्द बना सकते हो। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, ठीक है। तो वो तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे आप बना सकते हो। वर्ड इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने 2 पॉइंट्स अभी देखा, आइडेंटिफिकेशन, जो थोड़ा सा एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी आई हैव डिस्कस, एंड द नेक्स्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द वर्ड फॉर्मेशन। आप इस तरह से बहुत सारे मैं वर्ड दूंगा, आई विल गिव यू सम वर्ड मीनिंग, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट। पहले आपको हिंदी से ट्रांसलेट करना है, यू हैव टू first of all you have to translate all the Hindi sentences into English, and now you will be able to find out. So you are looking at the what is the relation between noun, verb, adjective and adverb. So this is the very important topics. So word formation is and identification is very good. So I hope अब आप थोड़ा समझ चुके होंगे इसके बारे में।
बट आप डोंट वरी अबाउट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आप पूरी समझने की कोशिश करो, डोंट वरी। आफ्टर द ग्रामेटिकल यू विल हैव टू वॉच द अनदर वीडियो बेस्ड ऑन ग्रामेटिकली, आप ग्रामेटिकली बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो अभी तो दिस इज द जस्ट स्टार्टिंग, दिस इज योर स्टार्टिंग। अभी हमने सिर्फ 2 स्टेज इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ा है, और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द different stages. For the first stage we have discussed about the letter, and second stage we are discussing about the word. अभी हम लोग सिर्फ दूसरे स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। we are just only going to understand that कि जब भी इंग्लिश का शब्द as we say any word of English and word, then what is this, ये शब्द क्या है। तो we must have idea about the parts of speech के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो हमारा पता होना चाहिए। एंड वर्ड फॉर्मेशन कैसे बना होता है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, दिस इज अ लिटिल आइडिया अबाउट द वर्ड फॉर्मेशन, अबाउट द वर्ड सेकंड स्टेज। एंड द नाउ द थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। दैट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक to improve vocabulary, which will improve your vocabulary. So every day we should try to learn all these topics. ये बहुत सारे टॉपिक हैं, these are the you are looking at, there are 12-14 topics that these will improve your vocabulary if you learn all these vocabulary. So the 5 last point is how to improve vocabulary, that means word meaning, and there are lots of topic. The first topic, words in frequent use. One by one I will provide you the video of all these words, we will discuss one by one. So this is not मतलब just I am telling you about the topic कि ये these are the some topics related with the vocabulary. vocabulary इससे improve होगा, आप बहुत सारे words जानोगे। तो words in frequent use, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली वर्ड में जैसे A से स्टार्टिंग, B से स्टार्टिंग, C से स्टार्टिंग, तो एटलीस्ट 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स आपको हर अल्फ़ाबेट्स पे पढ़ना चाहिए। और 200 वर्ड 300 वर्ड ऐसे याद करोगे तो 26 लेटर्स होते हैं, तो उससे आपको बहुत सारा वर्ड। सैनोनिम्स एवरीबॉडी नो, सिमिलर मीनिंग जो होता है, एंटोनिम्स, कैंट्रोनिम्स, होमोनिम्स, हेट्रोनिम्स, homograph, palindromes, pangrams, idiom and phrases, words used in different parts of speech। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, words used in the constitution, the speaking tree, words by category, जैसे parts of body पढ़ते हैं, फिर flowers का पढ़ते हैं, इसी तरह से बहुत सारे animals का। तो ये these are the 14 topics that will improve your vocabulary. So one by one I will discuss. तो there is a special video related with all these topics. तो one by one synonyms का, antonyms का, contronyms का बहुत सारे videos हैं जो आप देखेंगे, बहुत सारे I will discuss you one by one, and after that you will be able to improve your vocabulary. तो we have completed the second stage of the English language. हमने कंप्लीट कर लिया है, बेसिक आइडिया हमें समझ में आ गया है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस। हम लोग डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, दैट मीन्स लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव डिस्कस द लेटर। सेकंड स्टेज लेटर के बारे में हमने बोला, दैट मीन्स साउंड अकॉर्डिंग टू रिटन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश, ये हमने डिस्कस किया था। एंड नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड स्टेज। जो हम लोग सेकंड स्टेज के बारे में डिस्कस किया, दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द वर्ड, दैट मीन्स 5 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। हमने 5 पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस किया है, दैट मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज हमने 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखा आपने कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे बना होता है, और वोकेबुलरी के बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो वन बाय वन बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, दैट मीन्स वर्ड फॉर्मेशन पे भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स आपको मैं बताऊंगा, आप देखेंगे। आप आइडेंटिफिकेशन में भी आज 2 वर्ड्स मैंने सिर्फ बताया, ऑल के बारे में बताया था, क्लोज के बारे में बताया था। वर्ड फॉर्मेशन में 2 शब्द के बारे में बताया, क्रिएट का बताया, रचना और सक्सेस का बताया, इसका टॉपिक्स बताया, और बहुत सारे वोकेबुलरी का टॉपिक। So I hope friends, this second stage of English language is a very important. Without the knowledge of word meaning, we are not able to read effective, we are not able to write effective, we are not able to speak. So words are important friends, it's a very important, and knowledge is hidden in words friends. So have a nice day friends. I hope आप इस चीज़ को समझेंगे और इसका रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आए। एंड नाउ इसके बाद जो थर्ड स्टेज वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस। यहाँ से हम लोग सेंटेंसेस के बारे
बारे में जानते हैं कि जब as you combine arranging या putting the words together that makes a meaningful sense it becomes a sentence. तो सेंटेंस क्या होता है इसमें भी देखो आपको वीडियो के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस. सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड. आप इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें. सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू.